فریب چشم رائٹر ہیں امیمہ خان۔ سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 20 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ وہ گھر کی جانب جا رہے تھے جب کچھ سوچ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فون نکال کر نمبر ملایا۔ 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ سیغم کمال کی بھانجی بات کر رہی ہوں، چھوٹتے ہی تعارف کروایا تھا۔ وہ ہر جگہ پر ضرورت کے حساب سے اپنا تعارف بدل لیتی تھی۔ کہیں مصطفیٰ کی کزن۔ وہ گھر کی جانب جا رہی تھی جب کچھ سوچ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فون نکال کر نمبر ملایا۔ 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ سیغم کمال کی بھانجی بات کر رہی ہوں، چھوٹتے ہی تعارف کروایا تھا۔ وہ ہر جگہ پر ضرورت کے حساب سے اپنا تعارف بدل لیتی تھی۔ کہیں مصطفیٰ کی کزن، کہیں عالیحان کی بیٹی، کہیں مرحا کی بیٹی تو کہیں سیغم کی بھانجی۔ جی جی میڈم، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں؟ دوسری جانب سے نہایت مؤدبانہ لہجے میں جواب آیا۔ وہ دو خبریں کل کے اخبار میں شائع کروانی ہے، سرخ نیل پینٹ سے سجے ناخنوں پر پھونک مارتے کہا۔ وہ میڈم ایسے کیسے؟ وہ جھجک کا شکار تھا یا ڈرامہ کر رہا تھا؟ علائے کو اندازہ نہ ہوا۔ ہاں یا نہ؟ آئی برو چکاتے صاف صاف پوچھا۔ مقابل گڑبڑا گیا۔ خاموشی کو ہاں ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ سابق جرنلسٹ اور موجودہ فلم ڈائریکٹر کامران شاہد اور مشہور امریکی ڈیزائنر رومیسا اور فروما کے تعلقات منظر عام پر۔ اس خبر کو کیسے مرچ لگانی ہے تم اچھے سے جانتے ہوگے۔ ساتھ ہی ضرور لکھنا کہ مستند ذرائع سے خبر موصول ہوئی ہے، چند تصاویر بھیجوں گی، وہ بھی لگانا ساتھ۔ اس کو انکار کا موقع دیے بغیر وہ بولتے چلی گئی۔ مقابل انکار کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ سیغم کمال کی بھانجی تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ مشہور ڈائریکٹر کامران ارشد فلم کے بدترین کامیابی پر سٹیا ہے۔ فلم کی ہیروئن علائے فاطمہ کو دھمکی بھرے خطوط اور میسیجز موصول۔ اس خبر پر بھی خوب مرچ چھڑکنا۔ یہ دونوں خبریں ہر اخبار میں آنی چاہیے۔ ٹی وی پر معاملہ خود ہی آ جائے گا۔ گاڑی گاؤں میں داخل ہو چکی ہے اور وہ جلد از جلد بات ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن میم، یہ وہ دراصل علائے کا مقصد سمجھتے تنزیہ مسکرائی۔ اکاؤنٹ نمبر بھجوا دیجیے گا، پیسے کام ہوتے ہی مل جائیں گے، کہتے ہی فون کٹ ٹاک سے بند کر ڈالا۔ فون سے تصاویر واٹس ایپ کر کے سم نکالی اور توڑ کر چلتی گاڑی سے باہر پھینک دی۔ بربادی کا مکمل بندوبست کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ دوبارہ اوپر آ ہی نہ پائے۔ جانتی تھی کہ اتنے اسکینڈلز بنیں گے کہ دوبارہ شہرت حاصل کرنا ایک خواب ہی رہ جائے گا۔ تمام سوچوں کو پرے دھکیلتی وہ سر جھٹک کر نیچے اترنے لگی۔ گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں کی کثیر تعداد بتا رہی تھی کہ ہمیشہ کی طرح آرین افندی نے مرحا کے لاکھ انکار پر بڑے پیمانے پر تقریب منعقد کی ہے۔ اس نے ایک نظر اپنی حلیہ پر ڈالی۔ وہ تھکی تھکی سی کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ موبائل پر نوفل کو کال ملاتی وہ اندر بڑھنے لگی کہ تیز میوزک اور تیز روشنی پر سٹ پٹا گئی۔ اس کو دیکھتے ہی عالیہ نے میوزک بینڈ کو اشارہ کیا جو خوبصورت آواز کے جاتوں بکھیرتا سالگرہ کی مناسبت سے گانا گا رہا تھا۔ زوردار تالیوں کی گونج میں چلتی وہ مرحا کی جانب بڑھی۔ وہ جو فلم کی ناکامی پر پریشان تھی، اس کے چہرے پر موجود خوبصورت مسکراہٹ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ عالیان بھی حیرانی چھپاتا اس سے ملنے لگا۔ سب سے باری باری مل کر وہ پھولوں سے مزین خوبصورت جگہ پر گئی جہاں بڑا سا کیک پڑا تھا۔ تحفوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ نمٹاتی وہ سب سے ملنے لگی۔ اس کے فلم کی ناکامی کی خبر زبان صد عام تھی۔ سنا ہے آپ کی فلم ناکام ہو گئی، افسوس ہوا مجھے۔ یہ کسی صوبائی وزیر کی بیوی تھی جو سے ملتے ہی بول اٹھی۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ جو نہیں تھے اس فلم میں، آپ ہوتی تو ہٹ ہو جاتی ہے نا؟ طنزیہ لہجے میں دیکھتے وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ اتنے لوگوں میں اپنی بے عزتی پر وہ عورت دل ملا کر رہ گئی۔ وہ لوگوں کو ان کے اوقات میں رکھتی تھی کیونکہ وہ مرحا کمال کی بیٹی تھی۔ وہ مضبوط تھی مگر افسوس محبت کے معاملے میں ہار کر بکھر گئی تھی۔ اہم اہم نوفل کو منہا کے ساتھ کھڑا دیکھ کر گلا کھنکارا۔ میرا سین نہ بننے دینا آپ، اچھی بہنوں کی طرح یہاں سے جائیں، پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ چشمہ ٹھیک کرتے دھیمے لہجے میں کہا۔ چمچی کیا کہہ رہا تھا؟ چشمہ ٹو نوفل کو گھورتے منہا سے پوچھا۔ کزن میرج کے فائدے بتا رہا تھا آپ ہی۔ کیک کا ٹکڑا منہ میں رکھتے کا عالیہ نے آئیبرو چکا کر نوفل کو دیکھنا چاہا، مگر وہ چند قدموں کے فاصلے پر عالیان کے ساتھ کھڑا غصے سے منہا کو گھور رہا تھا جس کے منہ کے آگے خندق تھی۔ بولنے سے پہلے سوچنا تو بھائی کی چمچی نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ غیر ارادی نگاہ گیٹ کی جانب گئی تو پلوشا کو پریشان سا دیکھ کر وہ منہا کو چھوڑ کر اس کی جانب بڑھی۔ ارد گرد نگاہیں دوڑائیں تو مصطفیٰ کہیں نہیں تھا۔ کیا وہ نہیں آیا تھا؟ سوچ کر تلخ مسکان لبوں پر آن ٹھہری۔ لب بھیجتی وہ دل کا درد نظر انداز کرتی اس کی جانب بڑھی۔ محبوب کی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ وہ عام لڑکی ہوتی تو سازشوں کا شکار ہو کر مصطفیٰ کو زبردستی حاصل کر لیتی، لیکن وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ علایہ تھی جو بڑے سے بڑا غم اور دھچ کا ہنسی میں چھپا لیتی تھی۔ ویلکم، کیسی ہیں آپ؟ اس کے ہاتھ سے پھول اور گفٹ پکڑتے خوش دلی سے کہا۔ اسے اپنے سامنے پا کر پلوشا کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی۔ تھینکس، آپ مل گئے، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی، اتنے لوگ ہیں یہاں۔ وہ تو میرا آنٹی کے کہنے پر آ گئی، ورنہ نہ آتی۔ اسے دیکھتے ہی وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے بچے کو بھیڑ میں اپنا مل جائے۔ علائے ہلکا سا ہنستی اور کچھ زیادہ ہی معصوم تھی۔ آئے آپ کو سب سے ملواؤں؟
अजब बात थी, उसे देखकर हसद या एहसास से रकाबत नहीं जागा था। अपनी मोहब्बत को दिल के गोशे में संभाल कर रखती वो उसके साथ बोली। वो सबसे तारुफ करवाने लगी। इस सारे अमल के दौरान पलविशा ने एक पल के लिए भी इसका हाथ ना छोड़ा। तुम्हें रास्ते से हटाना एक लम्हे का खेल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बेहतरीन जिंदगी गुजारो, जहाँ महरूमियाँ ना हो। रही बात मेरी, तो जहाँ इतने दुख सहे वहाँ एक और सही। ये दुख काफी बड़ा है, लेकिन मैं ढीठ लड़की हूँ, बर्दाश्त कर ही लूंगी। उसे देखते सोचा था, हैप्पी बर्थडे बेस्ट बडी। मुस्तफ़ा की आवाज़ पर पलटी। वो यूनिफॉर्म में था, हाथ में फूल और गिफ्ट मौजूद थे। इसने मुस्कुरा कर थाम लिया। शुक्रिया। आज खास मेहमान आए हैं तुम्हारे, बहुत पर लाख पहरे बिठाकर हल्के फुल्के लहजे में कहा। मुबारक हो, इसकी बात नजरअंदाज करते कहा। वो उसकी मुबारकबाद का पस मंजर समझती हल्का सा हंसती। मैंने कहा था ना कि कामयाब आ जाऊंगी, देखो हो गई, कंधे उचकाते आम लहजे में कहा। पलविशा आई है, आओ जरा मिलवाती हूँ। दिल में हल्का सा दर्द उठा था, लेकिन वो मुस्कुरा दी। इसको बगौर देखते मुस्तफ़ा भी मुस्कुरा दी। इसने खुद को समेट लिया था बहुत खूबसूरती से। वो आगे बढ़कर मेहमान और पलविशा से मिलने लगा। सब तोहफे नीचे मौजूद कमरे में पड़े थे। वो कपड़े बदल कर तोहफे देखने आई थी। मिरहा, आलियान, नौफल, मिन्हा, सीगम, मिराल, फायजा फंदी और सायरा आजम की तरफ से दिए गए तोहफे उठाकर कमरे में भिजवाए। वो वापस उठने को थी कि मुस्तफ़ा की जानिब से मिलने वाले तोहफे पर नजर पड़ी। इसने आगे बढ़कर उठाया, कई लम्हे देखकर वापस रख दिया। उसे साथ नहीं लेकर जा सकती, ये मुझे तुम्हारी याद दिलाएगा, जो मैं नहीं चाहती। तोहफों के अंबार पर नजर डालकर वो वापस मुड़ गई। सब बेकार थे, किसी काम के नहीं। मुस्तफ़ा सीगम कमाल के नाम के टैग के साथ मौजूद तोहफा, जो हर साल इसकी अलमारी की जीनत बनता था, आज बेकार पड़ा था। दरवाज़ा बंद करने से पहले नजर इसके तोहफे पर पड़ी और वो लब भींचती ऊपर की जानिब बढ़ गई। फलाम्बश, आज का अखबार कहाँ है? वो मुलाजिम से पूछने लगी थी। उसे यकीन था कि इसकी बात पर अमल हो चुका होगा। बीबी, लॉन में अली साई पढ़ रहे हैं और बाकी अखबार लाइब्रेरी में है। वो इस बात में सर हिलाती लॉन की जानिब निकल गई। बिरहा भी वहीं मौजूद थी, जबकि नौफल पास ही बैठा फुटबॉल को उंगलियों पर घुमा रहा था। गुड मॉर्निंग, सबको सलाम करती हुए एक अखबार उठाकर बैठ गई। ये लो वो खबर जिसके चक्करों में तुम सुबह सवेरे उठ कर आए हो। मिरहा ने इसके आगे अखबार रखा, जहाँ अखबार के पहले सफ़े पर इसकी दोनों खबरें शे सुर्खी की सूरत में मौजूद थी। वो मुस्कुरा दी। इसकी तवक्को के अन मुताबिक अच्छे से मिर्च मसाला लगाकर खबरें नशर की गई थी। ये भी कामयाब हो गया। इसकी बड़बड़ाहट पर मिरहा ने अखबार खींचा। अलाया, सीधी तरह बताओ, क्या कर रही हो? कौन सी धमकियां मिली हैं? तुमने आलियान को क्यों नहीं बताया? आलियान भी जवाब तलब निगाहों से उसे देख रहा था। नौफिल अखबार पकड़कर देखने लगा कि ऐसी कौन सी खबर छुप गई है जो उसकी माँ का मूड बिगड़ गया था। उन्होंने कामरान की खबर जो देखा नहीं था या अहमियत नहीं दी थी, उसे अंदाजा न हो। मम, आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, सब पता लग जाएगा कि फिल्म क्यों की। पर डैड, पहले मुझे कुछ पैसे चाहिए। मिरहा के गुस्से से भरी निगाहों से बचती वो जल्दी से आलियान से बोली, मेरे अकाउंट से ले लेना। उसे हमेशा की तरह इसका गैरों की तरह पैसे मांगना बुरा लगा था। 25 करोड़ चाहिए। मिरहा की पहुंच से दूर होकर खड़े होते कहा था। एक ढेला नहीं मिलेगा आलियान, तुमने इस दफा दिए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। इसकी तवक्को के अन मुताबिक मिरहा ने गुस्से से कहा था। अलाया ने मदद तलब निगाहों से आलियान को देखा। जवाबन आलिया ने खामोश रहने का इशारा किया। आलियान, ये लड़की चंद दिनों में हमें सड़कों पर ले आएगी। इसका इशारा समझते मिरहा ने सर पीटा। प्लीज मामा, ये लास्ट टाइम। वो मिनमिनाई। आलिया ने मिरहा को घूरा। इट्स ओके, तुम ले लेना। वो खुशी से अंदर की जानिब पड़ गई। वैसे मामा, हम सड़कों पर नहीं आएंगे। बाबा हर मंथ जो आपको ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं वो बेचेंगी तो छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेंगे। मिरहा ने हैरत से मुंह खोलकर नौफल को देखा, जो अंदर की तरफ भाग चुका था। आलियान मुस्कुराहट छुपाने के गर्ज से अखबार मुंह के आगे कर गया। अलाया भी हल्का सा हंसती। मंजिलें खुद ब खुद इसके लिए आसान होती चली जा रही थी। वो तैयार सी कहीं जाने के लिए नीचे उतर रही थी। रिकॉर्डिंग मिली नहीं मुझे। फोन हाथ में लहराते मिरहा ने थोड़ी देर पहले वाली बात का हवाला दिया। मॉमी सवेली के गेट से निकलते ही भेज दूंगी, गुड बाय। इसका मुंह चूमती वो अगले लम्हे नजरों से ओझल हो गई। शायद जानती थी कि रिकॉर्डिंग सुनने के बाद के हालात काफी गंभीर होने वाले हैं। ठीक 2 मिनट बाद फोन पर नोटिफिकेशन मौसूल, जहां 20 मिनट की वॉइस रिकॉर्डिंग थी। वो डाउनलोड करती लाउंज की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ अलाया गाड़ी निकालकर इत्तेजा हदीद के घर की तरफ बढ़ गए। डैशबोर्ड पर 25 करोड़ का चेक पड़ा था और वो लब भींचे ड्राइविंग कर रही थी। इसे सामना करना अजियत से कम नहीं लग रहा था, मगर उसे आखिरी बार करना था। वो लब कुचलती सोच रही थी कि इसका सामना कैसे करे। वो कैसे अपना दागदार वजूद लेकर इसके सामने जाएगी। इसी कश्मकश में 2 घंटे गुजर गए। गाड़ी हदीद मेंशन के बाहर रुकी। गार्ड्स ने उसे पहचानते ही फौरन अंदर से इजाजत ली और वो गायब दिमाग से गाड़ी अंदर लेकर गई। उसे याद था कि वो पिछली दफा उसे अच्छे से जलील करके गई थी। हालांकि इसकी कोई गलती ना थी, मोहब्बत का हक था उसे। दिल पर अख्तियार थोड़ी होता है किसी का, लेकिन अब इसका सामना करते शर्मिंदगी सी हो रही थी। आप, वो शायद कहीं जा रहा था जब उसे देखकर बुरी तरह ठिठका। इसके साथ पिछली मुलाकात खासी नाखुशगवार थी। उसे लगा कि वो अब भी चीखेगी चिल्लाएगी। फिल्म की रकम अदायगी करने आई हूँ, इसके सवाल चेहरे को देखते कहा था। लेकिन आप तो अपना 60% हिस्सा यानी तकरीबन
36 करोड़ दे चुकी हैं। अर्तजा ने अचंभे से कहा। लेकिन चूंकि आप ख्वामख्वाह ही मेरे खेले गए खेल का हिस्सा बन गए तो आपका काफी नुकसान भी हुआ होगा। इसलिए फिल्म के सारे पैसे मैं दे रही हूँ। अपने बैग से चेक निकालते हुए उसकी जानी बढ़ाया। इर्तिजा इसके बढ़े हुए हाथ को देखकर हंसी और चेक पकड़ा। आपको लगता है कि मैं आपसे पैसे लूंगा? चेक इसके सामने करते पूछा, अंदाज में मोहब्बत झलक रही थी। आप ले सकते हैं मिस्टर। इसके कहने की देर थी कि इर्तिजा ने चेक के टुकड़े टुकड़े करके पास पड़ी डस्टबिन में डाल दिए। आप जैसे इसकी बात का मजाक उड़ाया था। अला ने गुस्सीली निगाहों से उसे देखा जो ख्वामख्वाह हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। वह लब भीजती बैग से चेक बुक निकाल कर दोबारा चेक साइन करने लगी। इसका भी यही हाल करूंगा। उसे देखते बावर करवाया कि यह हरकत रायगा जाएगी। वो खामोशी से चेक साइन करके दोबारा उसकी तरफ बढ़ा गई। चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। एक डील करते हैं। चेक देखते बीच का रास्ता निकालना चाहा। यह तो तय था कि वो उस लड़की से पैसे नहीं लेने वाला था। नहीं सुने बगैर ही इनकार कर डाला। एक फिल्म का स्क्रिप्ट लिख देंगी आप मुझे, अपनी लाइफ पर शुरू से लेकर अब तक। उसे लगा वो उसके साथ का मजाक उड़ा रहा है। चेहरे का रंग फक हो गया। वो कुछ भी कहे बगैर वापस मुड़ने को थी जब इसकी आवाज कानों से टकराई। You are the strongest girl I had ever seen. I want to make a film on you, and believe me, it will rule over the box office of for a long time. वो उसकी जात का मजाक नहीं उड़ा रहा था। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी जो जवाब तलब निगाहों से उसे देख रही थी। आपने शायद मुझे खलीलुर रहमान कमर की छोटी बहन समझ लिया है, लेकिन मैं अलाय हूँ कोई लिखारी नहीं। फिर से इनकार किया था। आप अदाकारा भी नहीं थी लेकिन कर ली अदाकारी। अब अगर आप दिल से काम करती किसी से बदला लिए बगैर तो ये फिल्म सुपर हिट जाती। इस तरह अगर आप दिल से लिखेंगी तो हो जाएगा। वैसे भी आप बीती लिखना इतना मुश्किल नहीं है। उसे बावर कराया था कि वो कर सकती है। दर हकीकत वो उसे बातों में घुमाकर आमादा करना चाह रहा था। मेरा जवाब अब भी वही है। चेक इसके हाथ में थमाती वो गाड़ी स्टार्ट करके निकलती चली गई। अर्तजा ने तासुब से नफी में सर हिलाया और हाथ में पकड़े चेक के कई टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। वो रास्ते में थी जब फोन बजा। नंबर को देखकर इस्तेहजाया मुस्कान होठों पर आन ठहरी। फोन उसकी स्पीकर पर डालकर सामने रखा और गाड़ी की रफ्तार हल्की कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाम नेहात बाप। वो तमीज का मुजाहरा कर ही नहीं पा रही थी। बकौल इसके वो शख्स इज्जत के काबिल ही नहीं था। तुम ठीक नहीं कर रही लड़की। लफ्ज लड़की पर चेहरे पर तारीकी फैली। पहले जो थोड़ी बहुत पेशमानी थी वो भी दूर जा भागी। क्या किया है मैंने? स्पॉट चेहरे के साथ सर्द लहजे में पूछा। जानती थी मुकाबल गुस्से से फटने को होगा। क्या साबित करना चाह रही हो ये ड्रामे करके? कामरान की जानिब सवाल फिर सवाल सवाल पर सवाल आए। इस लड़की के अनजान बनने पर सख्त ताव आया था। साबित तो कर दिया मैंने कि मैं आपकी बेटी और आप मेरे नाम नेहात बाप। अब भी कुछ साबित होना बाकी है क्या? लहजा भी सारे पहले झूठी खबरें और क्या आपके और रमेशा के ताल्लुकात नहीं थे ना? तो ये खबर कैसे झूठी हुई? और जहां तक बात है दूसरी खबर की तो क्या आप मुझे धमकियां नहीं दे रहे? इसके बाद बीच में काट कर गुस्से से पूछा। वो उस दान सी लड़की के सामने बेबस हो गया था। इस नोटिस का मकसद? हाथ में पकड़े लिफाफे को खूनखार निगाहों से देखते पूछा। विरासत में अपना हक मांगा है वो भी जायज हक। आपके दोनों बेटों के साथ साथ मैं भी जायदाद की कानूनी तौर पर हकदार हूँ। बेटी हूँ आपकी, भले नाजायज ही सही। और दूसरे नोटिस में इस तमाम रकम का मुतालबा किया है कि जो डैड ने बचपन से लेकर अब तक मुझ पर खर्च की। जाहिर है आपकी औलाद हूँ तो आपकी जिम्मेदारी हूँ ना। जिसकी तरह गुस्से से पूछा गया था इसके इत्मीनान से जवाब दिया। अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। तुम? वो गुस्से से बेकाबू होने को था जो अलाय ने फिर इसकी बात काटी। मैं आपसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। 15 दिन के अंदर अंदर मेरा हिस्सा और वो सारी रकम जो उस नोटिस में लिखी है वो दे दे। मेरी सुलझना कितना महंगा पड़ सकता है आपको अंदाजा हो ही गया होगा। आंखों से नफरत फूट रही थी। उसे इस हराम की कमाई से कोई गर्ज नहीं थी लेकिन वो उस शख्स को जिच करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रवासा का बंदोबस्त भी उसे करना था। एक और बात, होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जहाँ आपकी सोच खत्म होगी वहां से मेरी सोच शुरू होगी। वो जानती थी ये शख्स अपने हाथ पांव जरूर मारेगा, इसलिए उसे खबरदार करती फोन काट के गाड़ी की रफ्तार हल्की सी बढ़ाते म्यूजिक ऑन कर दी और साथ साथ खुद भी गुनगुनाने लगी। वो घर में दाखिल हुई तो गैर मामूली सी हलचल महसूस हुई। सोचों में घिरी वो जूही लाउंज में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर ताज्जुब से सर हिलाए। रोमेसा मिरहा के रूबरू खड़ी उसे बेनुक्स सुनाने में मगन थी। जब हमारे बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा इससे, तो क्यों तुमने उसे बताया? एक लड़की का बोझ सर पर आया तो दिखाती अपनी औकात। इस वक्त तो बड़ी तकरीरें कर रही थी कि तुम संभालोगी इस बच्ची को, ये करोगी वो करोगी। अब मेरे पीछे लगा दिया है इसे। अलाया हाथ बांध कर वहीं खड़ी रही। वो इस औरत के अंदर मौजूद जहर की इंतहा देखना चाहती थी ताकि बाद में वो जो भी इसके साथ करे उसे इस पर जरा भी पछताना न पड़े। मेरा का अंदाज ऐसा था जैसे उसे इस औरत की बातों से कतई फर्क न पड़ता हो। वो उसको नजरअंदाज करती मेज पर मौजूद मैगजीन ठीक करके रखने लगी। शायद वो रिकॉर्डिंग सुन चुकी थी। अलाया ने अंदाजा लगाया। क्या बातें हो रही है नाम नेहाद माँ और मेरी प्यारी सी मॉम में। वो उसे जालिस हरगिज नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि ये औरत जालिस होगी भी नहीं।
उसे बस अपने नाम और शोहरत से गर्ज थी। लड़की, तुम्हें बता रही हूँ, मेरे रास्ते से मैं मत आओ। ये सब है तो सही तुम्हारे पास, फिर क्या चाहती हो? उसे देखते ही वो आगे बढ़ी। इरादा दो टोक बात करने का था। मिरहा ने दुख और ताज्जुब से सामने खड़ी औरत को देखा जो आज भी बेहिसी की इंतहाओं को छू रही थी। वो जानती थी कि बज़ाहिर वो मुस्कुराती लड़की अपने माँ बाप को जाने और इनका रवैया देखने के बाद कितने दिल बर्दाश्त है। आप लोग दे ही क्या सकते हैं मुझे? दोबारा यहाँ मत आइएगा, वरना धक्के देकर निकलवाऊंगी। और हाँ, मेरे अगले गिफ्ट का इंतजार कीजिएगा। माँ आप भी फजूल लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देती हैं। आपको पता भी है, आज सीगा मामू अपना न्यूज़ चैनल लॉन्च कर रहे हैं। हमें कराची जाना है। आखिरी बात जरा ऊंची की थी ताकि उसे सुना सके कि जिस शख्स पर ज्यादती का इल्जाम लगाकर उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी, वो आज शोहरत और कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो आखिरी बात पर ठिठकी। सीगम कमाल, इसका नाम सिर लब दोहराया। अलाया सर झटकती ऊपर बढ़ गई। बाहर का रास्ता इस तरफ है। आपकी आमद से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। मिरहा ने दोनों बाजू सीने पर बांधते उसे बाहर का रास्ता दिखाया। वो गुस्से से सुर्ख होती पैर पटकती बाहर निकल गई। मिरहा कमरे की तरफ जाने लगी, साथ ही आलियान को फोन मिलाने लगी। अस्सलाम वालेकुम। फोन आज भी फौरन उठा लिया गया था और वो हमेशा की तरह हंसती। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वो शायद वापस आ रहा था क्योंकि गाड़ियों का शोर महसूस हुआ था। ठीक हूँ, 2 घंटों में क्या होना था? इसके फिक्र पर खुशी हुई मगर ऊपर ऊपर से डांट डाला। ये भी ठीक है। वो हल्का सा हंस दिया। रिकॉर्डिंग सुनी? इसके लिए आज शाम के इवेंट के कपड़े निकालते हुए पूछा। हाँ 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 हाँ, यार मुझे तो बहुत मजा आया। क्या कमाल किया है इसने। मुझे पता था ये कोई बड़ा ब्लास्ट ही करेगी और देखो कमाल ही कर दिया। आखिरकार मिरहा कमाल की बेटी है। मिरहा हंसती। पहले तो थोड़ा बहुत गुस्सा आया था रोमैसा की बातों से। वो अड़ंचू हो चुका था। वो चाहती थी कि अलाया इससे भी बुरा करे क्योंकि वो लोग थे ही इसी काबिल। ये तो है, पहले मुझे थोड़ा गुस्सा आया था लेकिन आज रोमैसा आई थी, बदतमीजी कर रही थी। अब तो मुझे भी लग रहा है कि कमाल कर दिया हमारी बेटी ने। वो अब अपने लिए कपड़े देख रही थी, साथ साथ फोन भी कान से लगाया हुआ था। कामरान पर तरस आ रहा है। दोनों माँ बेटियां उसको ऊपर पहुंचा कर ही दम लेगी। मिरहा का कह कहा गूंजा। वो ठीक ही तो कह रहा था। पहले वो मिरहा की हिट लिस्ट पर था और अब अलाया की। मिरहा से बच गया था लेकिन ये तो तय था कि अलाया से बचना नामुमकिन है। खैर छोड़ो, इनसे अलाया निमट लेगी। तुम्हें पता है आज तुम और नौफिल, मैं और अलाया एक जैसे कपड़े पहनने वाले हैं। सोफे पे बैठते हुए कहा। मेरे साथ तो कोई कभी कोई मैचिंग नहीं किया आज तक। दूसरी तरफ से शिकवा आया। मेरे हाथ सरशारी से मुस्कुरा दी। तो आप पहन ले साड़ी, मैचिंग हो जाएगी। वो खिलखिलाई। आलियान का मुंह खुल गया। इसकी बात पर दिमाग में अपनी साड़ी में मलबूस अक्स उभरा। अगले ही लम्हे वो चिल्लाया था, मिरहा। दूसरी तरफ वो हंस हंस कर बेहाल हो गई। इसकी हंसी सुनते वो हमेशा की तरह पुरसुकून महसूस करता। मुस्कुरा कर आंखें मूंद गया। अलाया अपने कपड़ों के साथ ज्वेलरी देख रही थी और मिरहा एक जैसी साड़ी पहनने वाली थी। यही हाल सीगम, मुस्तफ़ा, मिराल और मिनहा का था। ये सारा प्लान नौफल का था जिसमें उसने मिनहा को भी शामिल कर ही लिया। फोन की आवाज़ पर ज्वेलरी में इस पर रखती हुई बेड की तरफ आई। नंबर देखकर याद करने की कोशिश की है किसका है और अटेंड कर लिया। हेलो अलाया, बात कर रही हैं आप? फोन अटेंड होते ही मुकाबिल की आवाज़ उभरी। अलाया के लब उसे पहचानती ओ की शेप अंदाज में फैले। इसी से तो इसने अखबारों में खबरें छपवाई थी और अपनी रकम के लिए इसका असली नंबर ढूंढ चुका था क्योंकि दोस्त से सिम तो वो ज़ाया कर चुकी थी। वो पहले भी इसी नंबर पर मैसेज कर चुका था जिसमें इसने 10 लाख का मुतालबा किया था, मगर चूंकि अलाया ने कोई जवाब न दिया था इसलिए वो अब कॉल कर रहा था। कौन लियाला? मैं किसी लियाला को नहीं जानती। मैं तो नसरीन बात कर रही हूँ, शीते के 10 बच्चों की माँ। ठोस पेंडू लहजे में कहा था। हाथ से जब्त करना मुश्किल काम लगा। 10 बच्चों की अम्मा? नहीं, मेरा मतलब है आप अलाया बात नहीं कर रही। हैरत से कहते आखिर में बात बदल दी। अरे नहीं, मैं तो लियाला वेयाला पता नहीं कैसे नाम रख लेते हैं लोग। अब मुझे ही देख लो, इतने अच्छे नाम रखे हैं अपने 10 बच्चों के। गुड्डू, पप्पू, मुन्ना, चुन्ना। वो शुरू ही हो चुकी थी। मकाबल सटपटा गया। सॉरी मैम, गलत नंबर मिल गया। आप अपने 10 बच्चों के साथ खुश रहें, खुदा हाफिज। मकाबल ने जल्दी से फोन बंद किया। "हम्म, 2 खबरें क्या छपवा दी, 10 लाख मांग रहा है। एक थैला भी नहीं मिलेगा। आया बड़ा। मेरा नाम भी लियाला नहीं नहीं आलाया है। फोन हाथ में घुमाते दिल ही दिल में बोली और अगले ही लम्हे फोन बेड पर उछाल कर अपने लिए ज्वेलरी निकालने लगी। ये कराची में कायम एक वसी और अरीज खूबसूरत सी इमारत थी। ये सेगम कमाल के न्यूज़ चैनल का मरकजी दफ्तर था जो कई मंजिला इमारत पर मुबनी था। इसी न्यूज़ चैनल में बने बड़े से हॉल में आज की तकरीब मुनक्कद की गई। आज ही चैनल लॉन्च किया जा रहा था। सेगम की 30 साल अनथक मेहनत का नतीजा था। सब ख्वाब से लग रहा था। मिराल शिफ्यून की खूबसूरत साड़ी पहने सीगम के साथ खड़ी इधर उधर देखकर सरगोशनुमा अंदाज में बोली, ये खूबसूरत हकीकत है। इसके गिर्द अपने बाजू फैलाते वो उसे स्टूडियो दिखाने लगा। वो सबसे पहले आ चुके थे ताकि आज की तकरीब के इंतजामात का जायजा भी ले सके, जिसका हमने एक तवील इंतजार किया। उसकी आवाज़ में नमी घुल गई। वो काल कोठरी में गुजरे दिन याद आए। वो हर बात पर इजाज़त का इंतजार करना याद आए। वो मरहूम दादा, मरहूम मामू की झिड़कियाँ याद आईं। अगले ही लम्हे इस खूबसूरत शख्स को देखा जो उसे साथ लगा एक एक चीज़ दिखा रहा था। बिलाल सेगम कमाल ने इससे ज़्यादा बेहतरीन मर्द नहीं देखा था।
अम्मा मिसेस कमाल होती तो कितना खुश होती। इसकी आंखें झलक पड़ी। वो अपने रब की कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करती। ये सब इसकी मिराह की और तुम्हारी दुआओं का असर है। समर है। वो हर बार की तरह आज भी उसे मुअत्तर कर रहा था। रो मत, मैं चाहता हूँ कि ये खुशी तुम हंस कर मनाओ, ना कि रो कर। इसके आंसू साफ करते कहा था। वो मुस्कुराते हुए इसके साथ चलने लगी और अब उसे अपना ऑफिस दिखा रहा था। एक सरप्राइज भी है आज। इसके बाद पर मिलाल ने इश्तियाक से उसे देखा कि वो शायद वो बता दे, लेकिन इसने नहीं बताया था। बकौल सीगम कमाल के अगर सरप्राइज भी बता दिया जाए तो वो सरप्राइज थोड़ी हुआ। गहमा गहमी अरूज पर थी। यूं महसूस होता था जैसे रंग और बू का सैलाब उमड़ आया हो। मीडिया, शोबिज़, सियासत, बिजनेस और खेल से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक कसीर तादाद जमा थी। हेलो, अलाया मिर्हा की तरह की मैरून साड़ी पहने स्क्रीन पर चलते स्टूडियो की इमारत के मनाजिर देख रही थी कि कोई पास आकर रुका। हेलो। वो भी जवाबन हेलो कहती निगाहें वापस मोड़ के। मेरा नाम शुजा है, फिल्म स्टार हूँ। वैसे काफी प्यारी लग रही हैं आप। अलाया ने नागवार निगाहों से इस शख्स को देखा जो बिला वजह फैल रहा। ये नवा शख्स था जो आज के फंक्शन में से फ्री होने की कोशिश कर रहा था। ये अलग बात थी कि कोशिश कोशिश ही रहने वाली थी। पता है मुझे कि काफी अच्छी लग रही हूँ मैं। इसको एक नजर देखते वो वहां से जाने लगी। बात हो सकती है थोड़ी देर। इसका इरादा भांपते हुए उसकी राह में हाइल हुआ। मुझे पता है क्या बात करेंगे आप। आपको मुझसे पहली ही नजर में धुआंधार किस्म की मोहब्बत हो गई होगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे हीर को रांझे से होती है। फिर आप कहेंगे मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ये वो वगैरह। ऐसा ही है ना? एक ही सांस में कहते आखिर में रुक कर पूछा, जी हाँ। नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं। बेदहानी में मुंह से सच निकल आया, जिसे अगले ही लम्हे इसने झुठला दिया। ऐसा ही है। इससे पहले एक बात बताएं, अगर आपसे कहा जाए कि किसी नाजायज लड़की से शादी करें तो आप क्या करेंगे? दोनों हाथ बांधते हुए उसके रूबरू आ खड़ी हुई। एक्सक्यूज में मकाबल का चेहरा चेहरा पल भर में गुस्से से तप उठा। मुझे मेरा जवाब मिल चुका है तो मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी प्लीज। एक कांटदार निगाह पर डालती वो आगे बढ़ गई, जहां सीगम सब मेहमानों से कुछ कहने के लिए माइक ठीक करा। अटेंशन प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। ब्लैक टू पीस में वो सोबर सी शख्सियत लिए एक साइड पर बनी खसूसी जगह पर खड़ा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। इसकी आवाज़ पर हाल में एकदम खामोशी छा गई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी खुशी में शामिल हुए। वो माइक के सामने खड़े माहौल पर सकूत तारी कर रहा था। मिराल ने नम आंखों से इसकी इतनी बड़ी कामयाबी देखी। वो गवाह थी इसकी ईमानदारी और दिन रात मेहनत की। वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ मुसलसल बोल रहा था। मिर्हा उसे तशक्कुर भरी निगाहों से देखती रही। अगर ये शख्स ना होता तो कभी भी मिर्हा न बन पाती। वो एक आम सी लड़की होती। आंखें खुद ब खुद नम हो गई थी। उसे रोता देखकर आलिया ने कपकी से घूरते अपने साथ लगाया। वो रोते रोते हंसती। मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि मेरी कामयाबी का सेहरा औरत हो जाता है, क्योंकि बाबा बहुत जल्दी इंतकाल कर गए थे। इसके बाद मैंने औरत का मजबूत साथ अपने इर्द गिर्द पाया। वो औरत मिसेस कमाल के रूप में मेरी मरहूम माँ है। वो औरत मिर्हा कमाल के रूप में मेरी इकलौती बहन है। वो औरत मिराल सेगम कमाल के रूप में मेरी बीवी है। और वो औरत मीनहा सेगम कमाल के रूप में मेरी बेटी है। मेरी जिंदगी में इन चार औरतों के गिर्द घूमती है और सीगम कमाल आज जो भी है इन औरतों की वजह से। मेरा एक बेटा भी है जिसने मुझ पर आज से 28 साल पहले हराम के तमाम रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि इसी की वजह से मैंने हराम रिस्क खुद पर हराम कर डाला था। इसकी पैदाइश पर मैंने कसम उठाई थी कि हराम का लुकमा खाने से पहले मौत के मुंह में जाना पसंद करूंगा। वो अपनी कामयाबी का सहरा अपने से जुड़े रिश्तों के सर रख चुका था। हाल जोरदार तालियों से गूंज उठा। गैर और अपने से जुड़ी औरतों के हकूक का आलम बरदार आज हर जगह शोहरत के खंडे झंडे गाड़ चुका था। चैनल का नाम रखते हुए इसने जरा नहीं सोचा था। SKM न्यूज। इस नाम में मुझसे जुड़े हर रिश्ते के नाम का पहला हर्फ मौजूद है। एम से मिरहा, मिराल, मुस्तफ़ा, मिन्हा। ऐसे सीगम, जबकि के से कमाल। वहां मौजूद हर शख्स चौंका। सीगम ने मुराद मिराल को देखा, जैसे कहना चाह रहा हो कैसा लगा मेरा सरप्राइज। वो बेयकीनी से नाम के मखफ़िफ देखने लगी जो पूरे न्यूज़ चैनल में जगह जगह कुंदा थे। यकीन आते ही सीगम को देखकर हल्का सा हंस दी। अब एक बड़ी अनाउंसमेंट की तरफ आते हैं। चैनल की सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब, जो कि मेरी भांजी अलाया फातिमा है। आज से 3 साल पहले जब इसने जर्नलिज्म में PhD की डिग्री ली तो मैंने उसे न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने का कहा। तो इसने जवाब था कि मामू, जब आप अपना न्यूज़ चैनल लॉन्च करेंगे तो मैं वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं तो सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करूंगी। साथ ही एक प्रोग्राम किया करूंगी। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावा देना चाहूंगा अलाया को, जिसकी ख्वाहिश आज पूरी करने जा रहा हूँ। तालियों की गूंज बुलंद हुई थी। जरा से फासले पर खड़ी अलाया साकित रह गई। वो इस औरत की बेटी को इतना मान बख्श रहा था जिसने एक जमाने में इस पर बदकिरदारी और ज्यादती का इल्जाम लगाया था। वो कैसे जानते बूझते इतनी मोहब्बत कर सकता था इससे। वो उसके मजाक में कही की बात को इतनी अहमियत देगा, अलाया को अंदाजा नहीं था। सांसें साकिन हो गई और वो इधर उधर जाने की बजाय अपनी जगह पर जम गई। सेगम मुस्कुराता वहां से हटा, इसके पास आया और उसे अपने साथ ले स्टेज की जानी पड़ गया। बाजुओं के हल्के में उसे लेकर खड़ा हुआ तो फोटोग्राफर ने कई तस्वीरें खींची।
तालियों की गूंज में इजाफा हुआ था। वहां मौजूद हर शख्स जानता था कि इसकी सगी भांजी नहीं है, बल्कि मिरहा ने उसे गोद लिया था। फिर भी सीगम की इससे इतनी मोहब्बत देखकर लोग सराहे बगैर न रह सके। वो हल्का सा मुस्कुरा दी और उसे बोलता देखकर आहिस्ता से कदम उठाती आलिहान के पास जा खड़ी हुई। वो मजीद थोड़ी देर बोलकर वापस आ गया था। वेटर जल्दी से खाना सर्व करने लगे। जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मुबारक हो, उसके साथ खड़े होते मिरहा ने मुबारकबाद दी। ये दुनियावी कामयाबी है। असल कामयाबी तब हासिल हुई थी जब मैंने एक बेटे, भाई, शौहर और बाप के हकूक अदा किए थे। इसके सर पर बोसा देते इनकसारी से कहा, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर, मिरहा कमाल्स ब्रदर। तमानी से कहती वो किसी के बुलाने पर आगे बढ़ गई। सीगम ने नम निगाहों से ऊपर देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, सवाए जीनो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। एक तशक्कुर भरा आंसू उसकी शेफ में जज्ब हो गया। बाबा, मेरी फ्रेंड्स को ऑटोग्राफ देना। मिनहा इस तनहा खड़े देखकर लाड से बाहें इसके गिर्द हायल करती बोली, वाई नॉट माई लाइफ। वो उसके साथ खिंचता चला गया। सामने मुस्तफ़ा ने उसे देखकर फ्लाइंग किस पास की थी। वो उसकी शरारत पर हंस दिया। वो जवाबन किस पास की बिलाशुबा जिंदगी गुलजार थी। तकरीब इख्तिताम की जानिब थी और वो म्यूजिक के शोर से घबराती कोने में खड़ी थी। दरवाजे पर नजर पड़ी तो हैरत हुई। वो कोई और नहीं, इर्तजा हदीद था जो सीगम को ढूंढता उसकी तरफ बढ़ गया। ये शख्स हर जगह पहुंच जाता है। नफी में सर हिलाते सर झटका और बाहर निकल के ताकि ताज़ा हवा में सांस ले सके। बमुश्किल 10 मिनट गुजरे थे कि इर्तजा वापस जा रहा था। इसने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा जो अब वापस आ रहा था। वो शायद अपनी मसरूफियात में से बमुश्किल वक्त निकाल कर सीगम को मुबारकबाद देने आया था। इससे पहले वो वहां से गायब होती इर्तजा की नजर इस पे पड़ चुकी थी। हे लिसन, जरा सी ऊंची आवाज में उसे पुकारा। जी बेरुखी से पूछा, क्या सोचा फिर आपने? उसे देखकर वो लेट होने के बावजूद रुक गया था। मैं सोचती नहीं हूँ, जो करना होता है करती हूँ। तभी तो मोहब्बत कर बैठी। आखिरी जुमला दिल में कहते एक आह भरी थी। हर फंक्शन में मुस्तफ़ा के साथ नजर आने वाली वो लड़की आज इससे फासला बनाए हुई थी। इस काम में मुस्तफ़ा ने इसकी भरपूर मदद की थी। वो ठीक कहता था, रिश्ते पर रिश्ता बनाया जाए तो पुराना रिश्ता खो जाता है। मोहब्बत का रिश्ता बनाकर वो दोस्त खो चुकी थी। काश मोहब्बत पर अख्तियार होता तो लायका भी मोहब्बत ना करती। वो हर मैदान में जीतने वाली लड़की मोहब्बत में हार गई थी। इसमें क्या कबाहत है अगर आप लिख देंगी? आप लिख दे, मैं किसी बड़े राइटर से बाकी दुरुस्तगी करवा लूंगा। वो अब भी उसे आमादा करने पर बजीद था। फिल्म, नॉवल, ड्रामा तभी अच्छा लगता है जब सबको मंजिल मिल जाती है। दूसरे लफ्जों में इन सबकी हैप्पी एंडिंग ही अच्छी लगती है। मेरी जिंदगी में फिलहाल खुशी का वो मौका आया ही नहीं जिस पर मैं अपनी जिंदगी की कहानी का अख्ताम कर सकूं। इसने इनकार की वजह बताते लफ्जों की हेर फेर नहीं की थी, बल्कि दो टोक मौक़िफ़ दिया था। आपको नहीं लगता कि वो खुशी का मौका आपकी दहलीज पर आपका मुंतजिर है और आप दरवाज़ा खोलने में देर कर रही हैं? इसकी बात में छुपा मतलब समझते इसने मुठी यहाँ भींची। इतनी इज्जत अफजाई के बाद भी वो वहीं पर खड़ा था। वो आज भी अपनी मोहब्बत वाली बात पर कायम खड़ा था। अलाय ने खुद को तल्ख जवाब देने से रोकने की कोशिश की। वो इसलिए क्योंकि वो खुशी रास्ता भटक कर मेरी दहलीज पर आ गई। पहले आपने शिद्दत इश्क की मुझसे, मैंने अपनी मोहब्बत खो दी। अब आप क्या करना चाहते हैं? तलखी से कहते आखिर में इसका लहजा हल्का पड़ा। शादी का पैगाम भिजवाना चाहता हूँ। कई लम्हों बाद इसने धड़कते दिल से कहा था। इनकार बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी दिल में। इसके दो टोक अंदाज पर वो कितनी देर साकित खड़ी कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही थी। कोई सी अलाया, विरहा की आवाज पर दोनों के माबैन मौजूद सकूत टूटा। इर्तजा जल्दी से पीछे हटी। इस औरत को देखा जो अलाया जैसे लिबास में मलबूस निहायत हसीन लगी। वो पहचान क्या था उसे? वो साबिक सहाफी मिरहा कमाल थी। इससे पहले कुछ कहता अलाया की आवाज पर खामोश होकर आए, इर्तजा हदीद है ये। गायब दिमाग से नजरें इसके चेहरे पर टिकाए कहती वो मिरहा को चौंका गई। तुम्हारी फिल्म का प्रोड्यूसर, इसका नाम को पहचानते ही तस्दीक चाहिए। अलाया महज बात में सर हिला गई। खैर आप उसे समझा दें कि काम खत्म होते ही वो जो थोड़ी बहुत बातचीत या जान पहचान थी वो भी खत्म। अब ये अपने रास्ते चले, मेरी राह में बार बार ना आए। इसको तीखी निगाहों से देखते वो वहां से हट गई। मिरहा ने हैरत से उसे देखा जो अंदर बढ़ चुकी थी। इर्तजा को अंदाजा न था कि वो अपनी माँ के सामने क्यों बोल रहा है। वह हनूस बेयकीनी से खड़ा इस जगह को देख रहा था जहाँ से वो गई थी। सौदागर लगते हो। मिरहा की तरफ मुतवज्जो हुई जो निगाहें जमीन पर जमाए खड़ा था। इसकी बात पर निगाहें उठाकर वापस मोड़ ली। ये दिलों के अनोखे मिलाप होते हैं, यहाँ सौदागरी काम नहीं आती। मैं तो महज नजर करम का तलबगार हूँ। बेदहानी में मुंह से फिसला। मिरहा हैरान हुई फिर हंस दे। नहीं, वो मेरा मतलब था कि वो फौरन गड़बड़ा कर सीधा हुआ और वजाहत देने लगा। मोहब्बत में तो मतलब ही नहीं होता। हल्की सी मुस्कान होठों पर सजाएगा। इर्तिजा इस औरत के नर्म लहजे पर हल्का सा चौंका, मगर ये तो था कि इसका लहजा थोड़ा बहुत इत्मीनान दे गया था। हजारों लोग हैं ऐसे जिनके गिर्द जो सिर्फ तुम्हारी तरह नजरे करम के तलबगार है। तुम्हें ही क्यों चुने वो? इर्तिजा वापस निगाहें जमीन की तरफ मोड़ गया। उसे कुछ भी कभी नहीं चुनेगी। हाँ, अगर वो इजहार मोहब्बत में इतनी जल्दी ना करता तो शायद हालात कुछ और होते। इन हजारों लोगों में इर्तिजा हदीद सा एक भी नहीं होगा। खैर मैं इसका इंतखाब इंतखाब कभी भी नहीं होगा। वो हंसा था। मिरहा को लगा जैसे वो खुद का मजाक उड़ा रहा हूँ। इसकी हंसी में कर्ब लिपटा था। लड़की की माँ के सामने मोहब्बतनामा पढ़ रहे हो।
तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। माहौल में छाया गम और तनाव कम करने की कोशिश की थी। इसके लब मुस्कुराए थे, आंखों में हमेशा की तरह संजीदगी और वीरानी थी। हिम्मत होती तो अब तक लड़की मान चुकी होती। मेरा हंसते हुए नफी में सर हिला गई। आप मदद करेंगी मेरी? किसी उम्मीद के तहत उसे देखा जो नफी में सर हिला रही थी। जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता, इसकी मदद कोई नहीं करता, लेकिन चूंकि मैं अपनी बेटी को जानती हूँ तो इतनी मदद कर सकती हूँ कि उसे शादी के लिए आमादा कर लूँ। वो मदद ना करने का कहकर भी इसकी भरपूर मदद कर गई। शुक्रिया। ऐसे मौके पर सामने खड़ी औरत की मदद इसके लिए गनीमत थी। वैसे अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है तो आना कभी हमारे घर, चाय पियेंगे। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाई तो मेरा मशवरा है कि हमारे घर से कई मील दूर रहना, क्योंकि अपनी बेटी की हरकतों की गारंटी तो मैं खुद नहीं दे सकती। कंधे उचकाते उसे चाय पर मधु करने के साथ साथ डरा भी दिया था। इंश्योरेंस ना भी होती तब फिर भी आता, मोहब्बत में मरना भी एहसास होता है। ये रांझे की तरह हो सकता है, इर्तज़ालाए की कहानी भी तारीख का हिस्सा बन जाए। बिरहा बेसाख्ता हंसती चली गई, आंखों में आई नमी साफ करते। उसे देखा जो अभी भी निगाहें झुकाए इसके सामने खड़ा था। एक अच्छे इंसान हो तुम, दुआ है कि तुम कामयाब हो जाओ। इर्तजा आंखों में उलझन लिए उसे देखने लगा। वो कैसे है कि मुलाकात में इसके बारे में इतने वसूख से राय दे सकती थी। बेटी मौत की बद्दुआएं दे रही थी और माँ जिंदगी की दुआएं। इर्तजा को लगा कि वो माँ बेटी के दरमियान पागल हो जाएगा। एक सहाफी की निगाहें उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है, जाते जाते इसकी उलझन दूर कर गई थी। इर्तजा तादेर वहीं खड़ा इस जगह को देखने लगा जहां से दोनों माँ बेटियां बारी बारी इसकी निगाहों से ओझल हुई थी। क्या इसकी सगी माँ नहीं थी? इसने बेख्तियार सोचा। बेसाख्ता वो औरत याद आई जो उसकी सगी माँ थी। वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अगर एक लेपालक औलाद को वो इतनी मोहब्बत दे सकती थी तो अपनी सगी औलाद से इसकी मोहब्बत का क्या आलम होगा। सोचों में घिरा वो गाड़ी की जाने पड़ गया। वो एक अच्छी सहाफी होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान थी। इर्तिजा ने मुस्कुराते हुए राय कायम की। लगता है फ्यूचर सासू माँ काफी मदद कर सकती है मेरी। हंसते हुए गाड़ी जन से भगा कर ले गया। मॉम, ये सुबह सुबह आपको क्या हो गया? डरा भी कुछ समझाए, मुझे अभी नहीं करनी शादी, बल्कि शायद कभी भी नहीं। नाश्ते की मेज पर शादी नामा चिढ़ चुका था और वो सख्त खराब मूड के साथ जबरदस्ती वहां बैठी थी। कभी भी नहीं करने से क्या मतलब है आपका? अलाए मेरी जान, 29 साल की हो गई हो आप, और अब इतना कितना वक्त चाहिए आपको? अब तो आपके सारे मकसद भी पूरे हो गए। अलाय ने आलियान को देखा जो हमेशा की तरह आज भी इन दोनों के दरमियान बोलने से गुरेजा था, क्योंकि किसी एक की हिमायत पर दूसरा नाराज हो जाता और वो इन दोनों में से किसी की भी नाराजगी बर्दाश्त करने का मुतमल नहीं था। मॉम मत करें फोर्स, मुझे नहीं करनी शादी। इसकी झुंझलाई आवाज पर मिराह ने लब भींचे। कोई एक ठोस वजह बताओ। बमुश्किल जब्त की वो नरमी का मुजाहरा कर रही थी, वरना दिल तो चाह रहा था इसकी जिद्दी तबीयत को देखते हुए तो खींच कर लगाए। मॉम, अगर आप ही नहीं मान रही तो जरा आप इधर उधर नजर घुमाएं, हो सकता है कोई और ऐसा बंदा हो जो शादी के लिए तैयार हो। नौफिल ने लगे हाथों अपना मुद्दा बयान कर डाला। आलियान की घूरी पर वो फौरन सीधा हुआ। आपकी यही ख्वाहिश है ना, तो ठीक है कर लेती हूँ, लेकिन जिससे भी करूंगी इसको सारी सच्चाई बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ। मिराह हंस दी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारी शादी किसी झूठ पर करेंगे? इसकी शर्त मिराह के नजदीक बचकाना थी। तो फिर आप भी ये जानती होंगी कि हकीकत जानने के बाद कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, चाहे वो कोई दिहाड़ीदार मजदूर हो या कोई अमीर कबीर आदमी। ये जो सब मेरे तलबगार बने फिरते हैं, हकीकत जानने के बाद इन तलबगारों की कतार में आपको एक भी शख्स नजर नहीं आएगा। इर्तजा ठीक कहता था इसके बारे में। वो सफ़ा काना हद तक खुद के बारे में सालिम थी। नाश्ते की टेबल पर सकूत छा गया। इसके साथ कोई आज सबको खिली थी। अलाया, आलिया ने तनबीह निगाहों से उसे देखा जो नजरें झुकाए प्लेट में कांटा चला रही थी। ऑफिस जा रही हूँ, मामू के साथ वापस आऊंगी। नौफल की आंखों से चश्मा उतार कर अपनी आंखों पर लगाया और उठ खड़ी हुई। वो उसकी बातों पर अभी तक साकित बैठा था कि कुछ बोल ही ना सका, वगरना एहतजाज जरूर करता। मैं आती हूँ। मेरा जल्दी से उसके पीछे भागी और पोच में ही उसे जा लिया। इर्तिजा हदीद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए बढ़ाया गया। अलाया का हाथ हवा में मौलिक रह गया। मैंने आपसे कहा था कि उसे समझाएं कि मेरे रास्ते में ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसे समझाने के बजाय मुझे आमादा करके ही दम लेंगी। इसके नाम पर कल का वाकया याद आया जब वो उसको समझाने का काम मिरहा को दे गई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मिरहा एक ही मुलाकात में उसे खुद के लिए पसंद कर लेगी। जहां तक मैंने अंदाजा लगाया है वो काफी बार आपसे शादी का कह चुके हैं, और मैं भी, और इसमें कोई खास बुराई भी नहीं है। तो फिर इनकार की वजह? मिरहा चंद सीढ़ियां उतरती इसके पीछे पहुंची। वो अगर दुनिया का आखिरी मर्द भी होगा तब भी वो मेरी पसंद नहीं होगा। दो टोक बात की थी। वो इस मौजू को बंद करना चाहती थी क्योंकि जिद में मिरहा से दो हाथ आगे थे। शायद आप भूल रही है कि वो दुनिया का आखिरी मर्द होगा जो सब सच जानने के बाद भी तुम्हारी नजर करम का मुंतजिर होगा। अलाय ने चौंक कर मीरा को देखा। इसका अंदाजा इस कदर दुरुस्त होगा, अलाय को अंदाजा न था। अगले ही लम्हे वो नजरें चुरा गई। सच से या मिरहा से, ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। उसे यकीन हो चला था कि मिरहा लिहानाफंदी से जीतना नामुमकिन है। वो ठीक ही तो कह रही थी कि सब सच जानने के बावजूद बस का सवाल ही था, क्या कोई मर्द नाजायज लड़की से इस कदर मोहब्बत भी कर सकता है? इसने बेख्तियार सोचा। मुझे इसकी मोहब्बत से नफरत एक नया मौकफ पेश किया। गाड़ी की चाबी से बोनट पर निशान लगाने लगी। मेरा पुरसोच अंदाज में सर हिला गया। नफरत मोहब्बत का आगाज होती है।
مجھے میرا आलियाना फंदी की आदतों से नफरत थी, तुम्हें इसकी मोहब्बत से नफरत है. हम दोनों की कहानी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है. मुझे लगता है कि इस पूरी कायनात में मीर आलियाना फंदी से बेहतर शख्स कोई नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि वो बेहतरीन है. और मुझे भी लगता है कि इर्तिजा हदीस से बेहतर शख्स तुम्हें भी नहीं मिलेगा. अलाय बस खामोश से सुनती रही थी. वो इस औरत के सामने कभी जीत नहीं सकती थी, क्योंकि उसे मिरहा कमाल की हार से डर लगता था. ये अलग बात थी कि मिरहा कमाल से जीतना कोई आसान काम ना था. दोनों के दरमियान न जाने कितनी देर खामोशी छाई रही. क्या मैं तुम्हारी जिंदगी का ये फैसला खुद कर सकती हूँ? सन्नाटे को चीरती इसके इल्तिजा पर अलाय ने तड़प कर उसे देखा. ये औरत उसकी हर आती जाती सांस की मालिक थी. इस औरत को उसकी जिंदगी के तमाम फैसलों का मुकम्मल हक हासिल था. वो क्यों इजाजत मांग रही थी? इसका काम हुक्म करना था और अलाय का काम हुक्म की तामील. मिरहा अलियान की तनबीही आवाज पर वो दोनों चौंके. वो तने तासुरात से मिरहा को घूर रहा था. इसके अंदाज बता रहे थे कि उसे मिरहा की यह फैसला कतई पसंद नहीं आया. डैड, वो इन दोनों के दरमियान तनाव या कशीदगी की वजह नहीं बनना चाहते थे. आप जाओ अलाया, मिरहा कमरे में आओ. दोनों को एक नजर देखते हुक्मनामा जारी किया. मुस्तफ़ा की शादी के साथ मेरी रुखसती रख दीजिएगा. दोनों को साकित छोड़ती वो गाड़ी सन से भगा कर ले गई. ये क्या किया है तुमने? आलियान का सत्ता टूटता तो फौरन इसके पास मिली थी मैं इससे, और तुम्हें पता है मेरी आंख धोखा नहीं खाती. वो बहुत अच्छा इंसान है. रही बात अफेयर्स वगैरह की, तो जिस जगह पर वो है तो वहाँ ये आम सी बात है. इसकी घूरती निगाहों से नजरें चुराती वो धीमे लहजे में बोली. तुम इस पर अपना फैसला मुसल्लत कर रही हो? आलिया ने झुंझला कर इससे कहा. वो नहीं चाहता था कि अलाया की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कोई और करे. इजाजत मांगी थी मैंने और उसने दे दी. मुसल्लत नहीं किया मैंने फैसला, वो कहकर अंदर जाने को थी जब आलियान इसके सामने दीवार की तरह हाइल हुआ. अब तक इन दोनों के दरमियान होने वाली ये पहली बहस थी जिसका अंदाजा दोनों को ही ना हुआ. अगर तुम्हारा फैसला गलत साबित हुआ तो, इसने अपना खदशा जाहिर किया था मेरे हंसते. मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ. इसके लहजे से झलकता मान, यकीन और भरोसा देखते आलिया ने बेसख्त रास्ता छोड़ दिया. अगले ही लम्हे वो तेज तेज कदम उठाती घर में दाखिल हो गई थी. तो मेरे प्यार, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई हो. कहानी अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा. और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.